Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So this question is from the NCERT textbook, exercise 12.2, question number 7. Alright, so let's solve this question. This is of class 9th. Let's read the question first. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? Alright, the 3 shades are actually, this is 1, this is 2, and this one was 3rd shade. Okay, so this whole area, this was 1, and this one was 2nd. Alright, and this is 3rd. Okay, so 3 shades, 3 different shades. So let's solve this question. This is from the chapter Heron's formula. Okay, chapter number 12 of class 9th mathematics, formula. Alright, so first of all, let us read the question again. A kite in the shape of a square with diagonal 32 cm. So this diagonal has been given 32 cm. Let us name it first. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, and this is F, and let us take this as O, this point O. Okay, so the diagonal BD or AC, you can write AC or BD, that is given 32 cm. Okay, and this one is isosceles triangle CEF. It is isosceles triangle. Alright, so isosceles triangle means 2 sides are equal, isosceles triangle, and the 2 equal sides are 6 cm. So this and this, let us suppose 6 cm. So CE is equal to CF, that is equal to 6 cm. Also EF has been given 8 cm. Okay, so this is the given data. These things are given. Alright, given. Now let us come to the solution. So if you see, this is a square. ABCD is a square. ABCD is the square, is a square. Now we have to know the properties of the diagonals of a square. Alright, let us first write it. Let us first write the properties of the diagonals, because here side has not been given, the diagonal has been given. AC or BD equal to 32. Properties of the diagonals. Okay, diagonals of a square, diagonals of a square. Alright, so let us write it first. What are the properties of the diagonals of a square? So first property is that they are equal in length. These diagonals are equal in length. They are equal in length. So since here 1 is given, so basically we have to understand that both diagonals are of 32 cm. So they are equal in length. Okay, now what is the second property? Second property is they are perpendicular bisectors of each other. They are, let us write it, they are perpendicular bisectors of each other, bisectors of each other. Okay, each other. Now they are perpendicular bisectors of each other means this one is also 90 degree, this one also all are 90 degree here. Okay, and the third property is they divide the square into 2 congruent triangles. They divide the square into 2 congruent triangles. So here the 2 triangles, let us suppose ABD and BCD, we can say these are the 2 congruent triangles. Alright, now we have to first find out the area of part 1, this shade 1, then shade 2. Okay, so let us write it. So you know, this one is 32 cm, the diagonal, that means, and these are perpendicular bisectors also. So this AO, it will become 16 AO. Likewise this becomes 16, and likewise this will become 16, and this also will become 16. So basically AO equal to CO equal to BO equal to DO. Okay, AO equal to CO
equal to BO equal to DO, and that is equal to 16 centimeter. Okay. So now if you find out the area of this triangle AOD, this triangle AOD, okay, so half into base into height. So area of triangle AOD, how much? That is equal to half multiplied by base. Base is 16 and height is also 16. If you can see here, base is 16, this one is 16, and this one is also 16. Okay, so it will come out, that is equal to 16 8 ja 128, 16 8 ja 128 centimeter square. Similarly, if you see this one, all the areas will come out same. That area AOB, triangle AOB, it will also come out 120 centimeter square. Therefore area, ये पूरे फर्स्ट सेट का मतलब, ये पूरे का मतलब ABD का, ABD का ट्रायंगल का एरिया हमें कितना मिल जाएगा? एरिया ट्रायंगल ABD या सेड 1, इसको हम सेड 1 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज सेड 1, ये हो जाएगा 128 प्लस 128. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल राइट, नाउ सेट 2 के लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ABD और BCD दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो एरिया ट्रायंगल BCD भी सेम हो जाएगा. ऑल्सो वी कैन राइट एरिया ट्रायंगल BCD which is set 2 in this question, set 2, that will be equal to 256 centimeter square. So set 1 and set 2 both we have found, we have calculated 256 centimeter square. अभी आते हैं हम सेट 3 में. सेट 3 में तो काफ़ी ईजी है, हेरोन्स फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप. सो CEF में डायरेक्ट हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं फॉर ट्रायंगल CEF यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस A मल्टीप्लाइड बाई S माइनस B एंड मल्टीप्लाइड बाई S माइनस C. ओके, हियर हमारा A कितना है? 8 सेंटीमीटर है, B कितना है? 6 सेंटीमीटर है, एंड C इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. इट हैज़ बीन गिवन, आप देख सकते हैं एक साइड 8 है, बाकी दोनों साइड 6 है. ओके, तो यहाँ पे हमारा S क्या हो जाएगा? सो S इक्वल टू 8 प्लस 6 बाई 2. ये हमें पता है कि S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2, विच इज़ कॉल्ड दी सेमी पेरीमीटर. यू ऑल नो दिस थिंग, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ओके, तो ये हमारा कितना आया? 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी हम इससे हम एरिया निकाल देते हैं. S निकल गया, हम एरिया निकाल देते हैं. सो एरिया ट्रायंगल CEF, यही है हमारा CEF इक्वल टू हम CEF. ओके, CEF रूट ओवर S कितना है? 10 है, इंटू S माइनस A, तो 10 माइनस 8 करेंगे, S माइनस B 10 माइनस 6 करेंगे, एंड अगेन 10 माइनस 6 करेंगे S माइनस C. तो यही हमारा निकल के आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4. ओके, अब इस 10 को हम ब्रेक करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 में, बाकी को हम ऐसे ही रहने देंगे, और बाद में जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ से एक 4 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 2 निकाल लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड रूट 5 को अंदर रहने देंगे, दैट इज इक्वल टू 8 रूट 5. ओके, अभी रूट 5 का आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू क्या आता है, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, चलिए हम इसे निकाल के देखते हैं. तो 2 जा 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, 1 4, यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा. 100 लेंगे तो ये 2 बार जाएगा, नॉट 3 टाइम्स, 2 टाइम्स इट विल गो, 84 होगा. 16 आ जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा. ओके, फिर से 2 जीरो नीचे लेंगे. अभी ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार करने में मोर देन 1600 हो जाता है.
3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 12 एंड 1 13, यहाँ पे एक बार 2 रह गया था, फिर 3 आएगा, यहाँ पे 4 46 आएगा। इसको माइनस करते हैं, 1 होगा, 10 में 9 गया 1 होगा, अगेन 9 में 2 गया 7 होगा, अगेन यहाँ पे 2 होगा, 271। ऑलराइट, फिर 2 जीरो बैठाएंगे। अभी कितने बार जाएगा ये, 6 टाइम करके देखते हैं। 6 टाइम जाएगा तो ठीक है। 6 6 जा 36 का 6 3, 6 जा 36 प्लस 3 9, अगेन 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 7 2, 6 4 जा 24 2 26। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है बट यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। That means 2.236. If you reduce it to 2 places of decimal, you can write it 2.24. तो चलिए हम 2.24 मान के चलते हैं। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.24, इसका आंसर कितना आ जाता है, 8 4 जा 32, 2 यहाँ पर रहेगा 3, 8 2 जा 16, 3 19 9 1, 8 2 जा 16 1 17, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज how much paper of each shade has been used in it. So आप देख रहे हैं how much paper of each shade, ये हमारा shade 3 के लिए हो गया। for shade 1 paper used is, shade 1 paper used is 256, for shade 2 also 256, paper used is 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेट 2 के लिए भी हमारा सेम है, सेट 2 के लिए भी हमारा सेम है, पेपर यूज्ड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेट 3 के लिए क्या है, सेट 3 के लिए हमने अभी जस्ट निकाला है, पेपर यूज्ड इज 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। ओके ओके, सो पेपर यूज दिस मच। अभी इसमें ये जो ट्रायंगल है CEF, चूँकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ था, तो ये हम एक और तरीके से इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, लेट अस सपोज इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल दिख भी रहा है ये, चलिए इसे ही मान लेते हैं। ये A, या फिर इसे CEF ही मानते हैं, CEF ही हमारा है, CEF यही था हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैसा था, CEF। ओके, CEF, ये 8 दिया हुआ था, ये 6 और ये 6। ओके, अभी सिंस ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यहाँ पे जो आप डालेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो आप डालेंगे लाइक दिस, सो इट विल बाइसेक्ट द बेस। ओके, इट विल बाइसेक्ट द बेस। ये हमारा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अभी हमें ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये हाइट हमें निकालना पड़ेगा। तो इससे आप बोल सकते हैं मेथड 2 डायरेक्ट हेरोन्स फॉर्मूला से तो आप निकाल ही सकते हैं। सेकंड मेथड दिस वन इज, तो अभी क्या है, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। CE और ये कुछ मान लेते हैं G मान लेते हैं, CEG इन ट्रायंगल CEG, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइट हमें मालूम चल जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, CG इज इक्वल टू रूट ओवर CE स्क्वायर माइनस ऑफ EG स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, 6 हाइपोटेन्यूस है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 20। ओके, ये हो जाएगा रूट ओवर 20। अभी हमारा हाइट निकल गया, दिस वन इज हाइट रूट ओवर 20। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एंड बेस इज 8 EF इंटू दिस हाइट रूट 20 दैट इज इक्वल टू 4 रूट 20। ओके, इसमें अगर आप करते हैं 4 रूट 20 को आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो 4 2 जा 8 रूट 5 दैट इज इक्वल टू 8 रूट 5। और अगर आप देखते हैं तो ये आपका सेम चीज़ है जो यहाँ पे आपका निकला हुआ 8 रूट 5, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली दैट इज इक्वल टू 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So this was just a different method 2 to calculate the area of the isosceles triangle. All right. तो आई होप आपको पसंद आया होगा, सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा, एंड द मेथड ऑल्सो यू, आई होप यू लाइक इट. सो आप किसी भी तरीके से इसका निकाल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का. बाकी इसमें तो आपको डायगोनल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके. सो अच्छा सवाल है. एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7. सो आई होप you will keep watching my videos, my channel, and thanks for giving your time. Thank you very much.